conversation with. Good afternoon, everyone. I am in conversation with Dr. Sanjeev Gulati, HOD and Director, Department of Nephrology here. Sir. Yeah, good afternoon. I'm Dr. Sanjeev Gulati and heading the nephrology and kidney transplant program at Fortis Vasant Kunj. This program started in 2007 and since then we have done about 1200 kidney transplants here, and the unique aspect is that we have not only done the routine mundane kidney transplants but also the complicated ones, which include ABO-incompatible transplants, pediatric kidney transplants, transplants in sensitized donors, many of who are rejected elsewhere, transplants in HIV positive patients, and obviously repeat transplants. So this center has emerged as one of the largest kidney transplant centers in the country, and about not only that, a unique feature is that about 1/3 of our transplant patients are international patients. So we have got recognition not only from the different parts of country but from the different parts of the world too. Also, we have Dr. Rajiv Sood with us, sir. Good afternoon. I'm Dr. Rajiv Sood. I head the urology and the renal transplant program at Fortis Vasant Kunj. My association with renal transplantation goes back to 1993, and I have close to 1500 renal transplants. A lot has changed in terms of the people that we would induct into the program, the patients, how we are taking on more and more challenging cases. Technologies have made surgery much kinder for the donor and the recipient, with shorter turnaround times, with increasing acceptance for the procedure. Our skills have improved hugely, partly through experience and also aided by technology, so that today we can deliver a more guaranteed outcome for our patients. And we at Fortis monitor our clinical outcomes, which can be accessed on the net. So there's a great deal of trust and comfort that our patients can enjoy, consequent to the free availability of information. Sir, what has been your journey in the renal transplant? So transplant internationally started in 1954 in Boston, US. और इंडिया में भी जो ट्रांसप्लांट के इनिशियल रिजल्ट्स थे वो 1970s में शुरू हुए, बट एज अ रूटीन किडनी ट्रांसप्लांट जो पिकअप हुआ है पिक्ड अप इन 1990s. एंड मैं संजय गांधी पीजे लखनऊ में था जब हम लोगों ने अपना वहाँ का किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू किया, which was still one of the largest till date, having about nearly 4,000 such kidney transplant patients. इंडिया में जो ट्रांसप्लांट्स हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम the rest of the world कि we are predominantly dependent on a live related pool. तो जब तो उसमें एक हेल्दी डोनर का इशू आता है और एक पेशेंट का भी आता है, तो ये और ट्रांसप्लांट की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती. जैसे बाहर कैडावरिक ट्रांसप्लांट होता है तो एक नहीं तो दूसरा कर लिया, तो आपने एक बार करना है एंड यू हैव टू गेट इट राइट द फर्स्ट टाइम. सो इसमें ऑब्वियसली देयर आर very little room for error, and that is why the technology upgradation had become more important to give a sense of comfort as well as safety to the patient and to the donor, for both. और इसमें जो शुरुआत हुई तो शुरुआत में just like rest of the world we were using open surgical techniques. Then came the laparoscopy, which was really a big advance because उसमें जो surgical issues थी, जो ट्रांसप्लांट के बाद रिकवरी टाइम था वो डेफिनेटली कम हुआ, पेशेंट को पेन कम होने लगा. एंड दैट इज व्हाट वी इवॉल्व. हम जो थर्ड लेटेस्ट एडवांस है वो दैट इज कॉल्ड रोबोटिक ट्रांसप्लांट, जिसमें वी आर एबल टू हेसन द रिकवरी ऑफ दिस पेशेंट, बिकॉज पेन बहुत होता है अर्ली सर्जिकल पीरियड में, बोथ फॉर द डोनर एंड द रिसिपिएंट. द रिसिपिएंट ऑल्सो हैज multiple complications, he is at a risk of multiple complications. So the idea has been to minimize all this so that there is a faster recovery, a quicker time that they get back to work.
और इस सेंस में रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक इज अ ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड इन enhancing patient recovery and safety. And I think I'll hand over to Dr. Sood to talk more about the technical aspects about this. तो जैसे डॉक्टर गुलाटी ने बताया कि पोटेंशियल किडनी डोनर उसको दो एस्पेक्ट्स में चिंता होती है। एक कि मेरी सर्जरी होगी तो मुझे बहुत दर्द तो नहीं होगा, मैं अपनी ज़िंदगी के कामकाज दोबारा कब शुरू कर पाऊंगा, फिज़िकल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स। और दूसरी चिंता होती है कि मेरी उम्र तो नहीं कम हो जाएगी। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर अगर मैं कुछ गौर करूं तो ये है कि पहले हम ओपन सर्जरी करते थे जिसमें रिब का थोड़ा सा हिस्सा निकालना पड़ता था, विच वॉज अ वेरी पेनफुल सर्जिकल प्रोसीजर। इंसिशन काफ़ी लंबा होता था, तो पेशेंट को अक्सर 5 से 6 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता था। रिकवरी उसके बाद महीने भर तक दर्द रहता था एंड स्ट्रेनुअस फिजिकल एक्टिविटीज़ 3 से 6 महीने तक पोस्टपोन हो जाती थी। अब यही काम लैप्रोस्कोपिकली या रोबोटिकली किया जा सकता है, जिसमें शरीर के ऊपर सिर्फ 3 सुराख होते हैं और उन्हीं में से एक सुराख को थोड़ा बड़ा करके enough to allow the kidney to be taken out from inside the abdominal cavity। तो मरीज 2 से 3 दिन में घर चला जाता है। Within about 10 to 15 days दर्द नाम मात्र रह जाता है and he can get back to strenuous physical activities earlier। दूसरी बात जो डोनर को चिंता होती है कि किडनी डोनेट करने के बाद मेरी सेहत का क्या होगा। तो पहली बात तो कई हम में से ऐसे लोग हैं जो एक किडनी के साथ पैदा होते हैं और उम्र भर पता भी नहीं लगता उनको कि उनके पास एक किडनी है। पर अगर आप एक किडनी डोनेट करते हैं तो भी एक किडनी आपको जितने भी साल जिंदगी के हैं बड़े आराम से आपको सर्विस कर सकती है। बात एक किडनी या 2 किडनी या एक हार्ट या 2 लंग्स इसका नहीं है, बात है कि आप अपनी सेहत का कितना ध्यान रखते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, इन टर्म्स ऑफ ईटिंग हैबिट्स, इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज, अगर आप ये सब करते हैं तो यू कैन एंजॉय एग्जैक्टली द सेम क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट यू वुड विद 2 किडनीज। बल्कि एक स्टडी की गई थी जिसमें ये पाया गया था कि जो किडनी डोनर्स हैं वो एक आम इंसान से जिसने किडनी डोनेट नहीं की, जिसके पास 2 किडनीज हैं, उससे ज़्यादा जीते हैं। तो वो जीने की वजह ये नहीं है कि उन्होंने एक किडनी डोनेट कर दी, पर एक किडनी डोनेट करने के बाद उन्हें ये रियलाइजेशन आता है कि ज़िंदगी कितनी अहम है और शरीर को कैसे इंसान को देखभाल करनी चाहिए। सो इट इज़ मोर अबाउट डिसिप्लिन दैन अबाउट द नंबर ऑफ किडनीज दैट यू हैव। सो द डिसिप्लिन ऑन हाउ यू लिव योर लाइफ एंड हाउ यू लुक आफ्टर योर बॉडी। जहाँ तक रोबोटिक्स का सवाल है, जैसे कि डॉक्टर गुलाटी ने कहा, तो यही बेनिफिट हम रेसिपिएंट को भी दे पाते हैं, क्योंकि रेसिपिएंट सर्जरी में सबसे अहम होती है प्रिसाइज सूचरिंग। जो उनकी डोनर किडनी की आर्टरीज और वेन्स हैं उनको अक्सर काफ़ी गहराई में, ख़ास तौर पे मोटे लोगों में काफ़ी गहराई में काम करना पड़ता है, जिसमें कि विजिबिलिटी पुअर होती है, रोशनी अंदर तक आप पहुंचा नहीं पाते। तो उस परिस्थिति में जो सर्जरी की जा रही है अगर वो एग्जैक्ट नहीं है, उचित नहीं है, तो आउटकम्स या कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। तो रोबोटिक्स जब सर्जिकली यूरोलॉजी में या ट्रांसप्लांटेशन में या और डिसिप्लिन्स में अप्लाई किया गया, तो सबसे अहम एडवांटेज वाज doing suturing in difficult locations, in the depth, in areas where the hand or other instruments would not conveniently reach. So robotics has made a world of a difference to precise suturing, and that is the beauty of this wonderful technology which we have at Fortis Vasant Kunj, which we use both in urology as well as in renal transplant, as also in other specialities like surgery, gynecology, oncology, and all that. Sir, how does this robotic surgery add to the cost of renal transplant? तो हर चीज़ जैसे जैसे पॉपुलराइज होती जाती है तो कॉस्ट्स कम होते जाते हैं। तो हमें जो एडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स रोबोटिक्स में यूज़ करने पड़ते हैं, विच आर डिस्पोजेबल, एक केस में वही इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। तो
रफली 90,000 से 1.25 लाख तक का खर्चा एडिशनल आता है अगर हम रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं। पर बात वो लाख 1.25 लाख की कम है, बट डिलीवरिंग एन एग्जैक्ट प्रिसाइज आउटकम विच thereafter means a lot in a renal transplantation setting for the patient in terms of continuing graft function, not having complications of hypertension due to anastomotic narrowing and those kinds of things. So robotic costs offset the benefits, which is a faster turnaround and a better long-term outcome. और दूसरा जैसे कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी तो जो पेशेंट कैन बी डिस्चार्ज अर्लियर, सो लार्ज पार्ट ऑफ दिस कॉस्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स कम मिलेंगे, रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस कम है, सो लार्ज पार्ट ऑफ दिस कॉस्ट इज ऑल्सो ऑफसेट बाय जो कॉम्प्लिकेशंस कम हो रही हैं और सेफ्टी जो बढ़ रही है. सो इट कम्स एट अ कॉस्ट, बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आई मीन इट इज वर्थ दैट एक्स्ट्रा बिट. एंड बिकॉज ये तो आपने बार बार तो प्रोसीजर कराना नहीं, इट इज नॉट समथिंग लाइक ब्लड टेस्ट जो आपके रोज हो रहे हैं, इट इज अ वन टाइम थिंग. तो जब आपने कराना है तो एक जो बेस्ट पॉसिबल स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक है, इफ यू हैव द अपॉर्चुनिटी यू शुड बी एबल टू. एक किडनी फेलियर पेशेंट की लाइफ स्पैन में 2 या मैक्सिमम 3 किडनी ट्रांसप्लांट हो पाते हैं, क्योंकि इम्यूनोलॉजिकल इश्यूज भी आ जाते हैं. तो इट इज नॉट ओनली अ मैटर ऑफ surgically attaching a kidney, but उसके outcomes are influenced by immunological reasons also. So the importance के पहला या दूसरा renal transplant अगर किसी को हो रहा है तो वो बेस्ट पॉसिबल तरीके से किया जाए ताकि उस मरीज को उस किडनी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन प्राप्त हो सके. और जो डिफिकल्ट आपके पेशेंट्स हैं जैसे उनमें खास सेफ्टी इस पर बढ़ जाए, मोटापे के वो मॉर्बिडिटी आपने देखा आजकल मोटापा बहुत बढ़ रहा है, डायबिटीज बहुत बढ़ रही है, तो ऐसे में जो सर्जरी है इट इज बिट मोर डिफिकल्ट. मल्टीपल आर्टरीज वेन्स हैं जैसे पहले बताया गया, द सर्जरी इज मोर डिफिकल्ट, द चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आर हायर. सो देयर इट इज अ यूनिक एडवांटेज. एंड अदर्स एवरीबडी वांट्स द बेस्ट. आई मीन जब जाते हैं तो आप यू कैन ट्रैवल बाय बाइसिकल, you can travel by a Maruti, and yet people travel in a BMW and Mercedes. So for the same logic, if you want the best, it is now available. So it is a technology जो सारी दुनिया में available थी for the last couple of years. I think दो साल से ये introduce हुई है, a couple of years. Renal transplantation पिछले 3-4 सालों से. Now it is available in our country for those कुछ लोग ऐसे थे जो robotic transplant कराने बाहर जाते थे. But now they have that opportunity to get the same kind of treatment within our own country. So what has been the success rate for this? तो अगर हम कहें कि हम अपने क्लिनिकल आउटकम्स मॉनिटर करते हैं एंड दे आर पोस्टेड ऑन द नेट, तो हमारे लाइव रिलेटेड प्रोग्राम के आउटकम्स 1 साल के ऊपर अगर 100 ट्रांसप्लांट हम करते हैं तो उसमें से क्लोज टू 98% ग्राफ्ट्स आर वर्किंग एट 1 ईयर. दिस हैज़ बीन अचीव्ड, जैसा हमने कहा कि टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, स्किल इम्प्रूवमेंट के साथ, तो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस आर वर्चुअली ज़ीरो. अगर हम देयर आफ्टर कहें कि ग्राफ्ट लॉस फिर भी होता है तो उसका अक्सर रिजेक्शन या इन्फेक्शन, दीज आर द 2 मेन चैलेंजेस इन मैनेजिंग पेशेंट्स ऑफ किडनी ट्रांसप्लांटेशन. तो सर्जिकल वजह से ग्राफ्ट लॉस इज नाउ वर्चुअली अ रेयरिटी. बाकी अदर कॉम्प्लिकेशंस ऑल्सो जो हुआ करती थी, wound complications, and those they have all since become much less. Sir, how has robotic surgery helped in urology practice? तो अगर मैं सर्जरी की एवोल्यूशन की बात करूं तो यूरोलॉजी हैज ऑलवेज बीन द टेक्नोलॉजिकली ऑन द कटिंग एज, बिकॉज the urinary passage lends itself to easy access through a natural opening. तो हम यूरोलॉजिस्ट सबसे पहले एंडोस्कोपी की शुरुआत यूरोलॉजिस्ट ने की थी, ब्लैडर स्टोन्स के इलाज के लिए, यूरेट्रिक स्टोन्स के इलाज के लिए. तो यूरोलॉजिस्ट एज सच आर यूज्ड टू ऑपरेटिंग यूजिंग एंडोस्कोप्स एंड ऑन अ 3D screen. So for them it was very easy to adopt laparoscopic surgery. जब laparoscopic surgery
का दौर था या इट वाज पिकिंग अप इन द कंट्री, तो अ लॉट ऑफ यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स स्टार्टेड हैपनिंग थ्रू लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। पर अगर मैं खास तौर पे कैंसर प्रोस्टेट की बात करूं तो प्रोस्टेट एक अंग है और उसकी लोकेशन जहां पे है बोनी पेल्विस के निचले भाग में, तो कैंसर प्रोस्टेट में प्रोस्टेट को निकाल के दोबारा ब्लैडर और पेशाब की मोरी को सीना आसान काम नहीं होता था, चाहे वो ओपन सर्जरी से हो चाहे वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से हो। वहाँ पे रोबोटिक सर्जरी का रोल बहुत अहम रहा है और इस टेक्नोलॉजी की पॉपुलराइजेशन में कैंसर प्रोस्टेट के इलाज की जो आसानी हुई है इलाज में थैंक्स टू रोबोटिक सर्जरी, तो उससे जो हमने ज्ञान प्राप्त किया अब हम रोबोटिक सर्जरी रूटीनली इस्तेमाल करते हैं किडनी के आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शंस की स्टिचिंग करने के लिए, या यूरेटर जो ट्यूब किडनी से पेशाब ब्लैडर तक लाती है उसको अगर कभी काट के सिलना होता है तो रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। कैंसर में जहाँ भी किसी ऑर्गन को निकालना है और फिर नॉर्मल पैसेज रिकंस्ट्रक्ट करना है तो रोबोटिक सर्जरी हैज टुडे बिकम द नॉर्म रादर देन द एक्सेप्शन। Sir, can you please give us some insights on what is a renal transplant and how to go about it? So renal transplant ऐसी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो एंड स्टेज 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज है, ऐसे पेशेंट्स के लिए इट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। दूसरी ऑप्शन रहती है डायलिसिस, पर डायलिसिस का और ट्रांसप्लांट का लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट्स हैं उसको कंपेयर कर लेना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए आज ही हम 10 पेशेंट्स को डायलिसिस पे डाल दें और 10 को ट्रांसप्लांट कर दें, तो 1 साल बाद ट्रांसप्लांट में जैसे अभी पहले बताया गया आज सक्सेस रेट्स आर 98%, तो 10 में से 9 तो ठीक चल ही रहे हैं। डायलिसिस में जो आउट ऑफ 10 पेशेंट्स 7 या 8 विल बी अलाइव, तो वी लूज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता कि इसमें, लेकिन जो एक पेशेंट नहीं काम कर, जिसकी किडनी नहीं काम करी, स्टिल अलाइव, तो पेशेंट सर्वाइवल इज नियरली 100%। लेकिन जहाँ 5 साल आए तो 5 साल पे जो ट्रांसप्लांट का हमारा सक्सेस रेट है इज अबाउट 80%। 10 में से 8 तो किडनीज बिल्कुल ठीक काम कर रही होंगी, एक पेशेंट की हो सकता है किडनी फेल हो गई हो और वो बट नेवरदलेस ही इज अलाइव, और जो एक पेशेंट है वी माइट लूज बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, हार्ट डिजीज, कॉम्प्लिकेशंस। लेकिन जहाँ डायलिसिस का सवाल है, अगर आप ऑप्टिमल डायलिसिस दे रहे हो विच इज दैट ऑफ यूएस स्टैंडर्ड्स, तो 5 साल पे द सक्सेस रेट इवन इन द बेस्ट सेटअप इज ओनली अबाउट 20 to 30%, यानी 10 में से केवल 2 या 3 पेशेंट्स डायलिसिस पे जीवित रहेंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर हमारे पास 2 रास्ते हैं तो ऑब्वियसली इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आप ट्रांसप्लांट वाला रास्ता चुनेंगे। और प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट इज अनदर टेक्निक, यानी बिना डायलिसिस के ट्रांसप्लांट कर दिया जाए वही पेशेंट को। उसके 2 फायदे हैं, एक तो कॉस्ट बेनिफिट है, क्योंकि अगर आप बिना डायलिसिस के ट्रांसप्लांट कर रहे हो तो जो डायलिसिस की कॉस्ट है वो आप बचा रहे हो, यानी आपने अगर 1 साल डायलिसिस पे होना था तो वो कॉस्ट बच गई, 2 साल होना था तो वो कॉस्ट बच रही है, या 3 साल होना था। और दूसरा, सक्सेस रेट ऑफ प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट इन द लॉन्ग टर्म इज बेटर, बिकॉज पेशेंट एक बेटर स्टेट में होता है। डायलिसिस एन इम्परफेक्ट ट्रीटमेंट, क्यों, और उसमें इन्फेक्शंस और हार्ट डिजीज बहुत होती है, तो जितना लॉन्गर टाइम डायलिसिस पर रहेगा पेशेंट तो इन्फेक्शंस और हार्ट डिजीज होती रहती है, वीक भी होता है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि हाँ डायलिसिस नहीं करिए, डायलिसिस इज लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट, बट अगर आपके पास चॉइस है बिटवीन डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट तो इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है कि ट्रांसप्लांट इज अ बेटर ट्रीटमेंट, इट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। एक और एडवांटेज है ट्रांसप्लांट का, दैट यू आर कंप्लीटली फिजिकली रिहेबिलिटेटेड। इसका मतलब यह है कि आप अपना नौकरी पेशा पूरी तरह से कर सकते हैं। डायलिसिस में आप एक मशीन पे डिपेंडेंट है जिसमें हफ्ते में 3 बार आपने आना है, वेरस इन अ ट्रांसप्लांट यू आर इंडिपेंडेंट, आपने महीने में 1 बार डॉक्टर को दिखाना है, बट चाहे अगर बच्चा है तो वो उसकी स्कूलिंग होती है, बड़े हैं तो अपने they can earn for themselves and their family, so a transplant patient is a useful productive member of the society, जबकि dialysis patient is actually drains both the family and the society, क्योंकि उस पर ongoing खर्चा है। ट्रांसप्लांट का एक और एडवांटेज है बच्चों में, वो ये है ग्रोथ। डायलिसिस पे ग्रोथ बिकम स्टंटेड, लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद द ग्रोथ पिक्स अप। सो एंड वी हैव सेवरल, हमारे कई बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने ट्रांसप्लांट के बाद दे आर
परफॉर्मिंग अमंग टॉप ग्रेड्स इन स्कूल्स. हमारे पास एक जो हमने छोटा बच्चा है 4 साल की उम्र पे ट्रांसप्लांट किया था, उसकी तो स्कूलिंग ही ट्रांसप्लांट के बाद शुरू हुई. और उसका अगर आप एनुअल रिपोर्ट कार्ड देख लें तो इट इज वर्थ लुकिंग एट. एवरी टाइम विदाउट फेल फॉर द लास्ट 9 years ही इज गॉट द फर्स्ट रैंक इन क्लास. एक दूसरा बच्चा है जो ट्रांसप्लांट से पहले चल ही नहीं सकता था, उसका सांस फूलता था. एंड दैट ये इंटरनेशनल उज्बेकिस्तान से आया था हमारे पास. उसका यहाँ से टॉयलेट तक नहीं जा सकता था, इतना उसका सांस फूलता था. और आज की डेट में ही इज एन एथलीट, ही इज इन द स्कूल बॉक्सिंग टीम. इट उसकी जो ग्रोथ हुई है इट इज रिमार्केबल. सो इसमें कोई दो राय नहीं. बहुत सारे कई बार पेशेंट्स आके हमसे पूछते हैं कि मैं ट्रांसप्लांट कराऊं, डायलिसिस कराऊं. सोचने की बात ही नहीं है. किडनी डिजीज स्टेज 5 के लिए ट्रांसप्लांट के बारे में ही सोचना चाहिए. ट्रांसप्लांट में लिमिटेशंस है कि हमें एक डोनर चाहिए जो फैमिली से होना चाहिए, इमीडिएट या सेकेंड डिग्री फैमिली से. तो अगर आपके पास डोनर अवेलेबल है तो बिना सोचे, बिकॉज कॉस्ट भी ट्रांसप्लांट की डायलिसिस से कम है. कई बार कॉस्ट की बात आ जाती है कि वो डायलिसिस कहते हैं कि डायलिसिस तो 2000 में हो जाता है और ट्रांसप्लांट में हमारा 4 लाख का खर्चा है. बट डायलिसिस में ऑन गोइंग एक्सपेंस है, रिकरिंग एक्सपेंस है. ट्रांसप्लांट इज अ वन टाइम एक्सपेंस. सो लॉन्ग टर्म दी 1 साल का जो डायलिसिस है उससे चीपर पड़ता है ट्रांसप्लांट. सो इन ऑल रिस्पेक्ट्स ट्रांसप्लांट इज बेटर देन डायलिसिस. And so what is the recovery period after a dialysis or a transplant? Like, देखिए डायलिसिस पे रिकवरी पीरियड ये है कि अब अगर अच्छा आप डायलिसिस कर रहे हैं तो यू हैव टू कम टू द हॉस्पिटल 4 hours 3 times a week. 12 घंटे आपका डायलिसिस होना है और वो अल्टरनेट डे पे होना है. चाहे कुछ भी हो जाए आपको हॉस्पिटल में आना ही आना है. एक ऑल्टरनेटिव टेक्निक है होम डायलिसिस, जिसे वाटर डायलिसिस बोलते हैं. वो तो आपको डेली करना है. तो इसमें you have lot of limitations in work, in travel, whatever you say. ट्रांसप्लांट सो इसलिए रिकवरी पीरियड कहना मुश्किल है डायलिसिस में, बिकॉज इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस. हाँ, जिस समय डायलिसिस नहीं हो रहा आप जनरली नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं. बट हाँ, अग्रेसिव फिजिकल स्पोर्ट्स एंड ऑल इट इज इम्पॉसिबल फॉर दीज पेशेंट्स टू अंडरटेक. और जहाँ तक ट्रांसप्लांट का सवाल है, हमारे जो पेशेंट्स हैं हम लोग 7वें दिन उनको डिस्चार्ज कर देते हैं और उस समय वो चल रहे होते हैं, खाना वाना नॉर्मल डाइट ले रहे होते हैं. फर्स्ट मंथ तक देयर आर रिस्ट्रिक्शंस बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. इम्यूनोसप्रेशन बहुत हाई होता है. सो हम लोग कहते हैं कि ज़्यादा सोशल मतलब उस सर्कल्स में मूव नहीं करें, घर पे ही रहें, लेकिन ये कमरे में बंद नहीं करें. कई बार ये भी देखा गया है कि वो फैमिली उनको एक कमरे में बंद कर देती है, कोई जाता नहीं, कोई बाहर नहीं निकलता. उतना भी नहीं है, दे कैन गो आउट इन ओपन एयर, ऐसा कुछ नहीं है. और घर वालों के साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, डाइट वही लेते हैं जो बाकी खा रहे हैं. सफाई का थोड़ा ध्यान रखना होता है. मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स आर बैक टू वर्क बाय अबाउट 1.5 months. 1.5 महीने पे वो अपना काम चालू कर सकते हैं. हाँ, देयर आर पीरियोडिक विजिट्स टू अ डॉक्टर, पीरियोडिक चेकअप्स एंड रेगुलर मेडिसिन. मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर इज अ लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेशन. कुछ दवाइयाँ हैं जो उम्र भर खानी है, जो आप यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस एंड रेगुलर चेकअप्स. अगर आप ये करते रहें, यू लीड अ डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल, यू आर नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पेशेंट. कई बार आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि आपके साथ जो मरीज बैठा हुआ है वो एक ट्रांसप्लांट हुआ है. दैट इज द सक्सेस किडनी ट्रांसप्लांटेशन हैज अचीव्ड टुडे. So in that sense, the robotic transplantation actually makes it even more safer and minimizes the early surgical complications in the early surgical period. Long term outcomes अगर कोई पूछे क्या रोबोटिक की उससे बेटर है तो मैं कहूँगा कोई फर्क नहीं है. इसलिए अगर आपके पास एक लिमिटेड बजट है तो उन लोगों के लिए तो कन्वेंशनल किडनी ट्रांसप्लांट जो हम कर रहे हैं वो ठीक है. आपको उस पैसे को प्रिजर्व करके रखें तो अगर कल को कोई कॉम्प्लिकेशन हो, रीएडमिशन हो तो रखें. हाँ, बट इफ फाइनेंसेस आर नॉट एन इशू and you want the best, then definitely robotic kidney transplantation is now available in our country, and we have now started the procedure here at Vasant Kunj. Sir, we have a few questions from the audience. So one of them is Pushpa Pawar. She's asking, a kid has one kidney from birth. At 15 years, his kidney failed. What are options for him? At 15 years, the kidney has failed. जैसे कि मैंने बताया कि किडनी फेलियर में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं. पहला है डायलिसिस और दूसरा है किडनी ट्रांसप्लांट. लेकिन डायलिसिस का कोई अंत नहीं है. डायलिसिस आप एक बार शुरू कर रहे हैं तो आपको करते ही रहना पड़ेगा. इट्स एन ऑनगोइंग थिंग. और उस 15 इयर्स के बच्चे को अगर डायलिसिस पे आप डालेंगे, उसकी ग्रोथ रुकी हुई है
उसकी स्कूलिंग इफेक्ट हो रही है, उसकी इंटरेक्शन विद पीयर्स, हिज एंटायर चाइल्डहुड इज डिसरप्टेड, क्योंकि वो अपना उसका तो बस घर से डायलिसिस से घर उससे वो आएगा, तो इज ट्रॉमेटाइज्ड। यही बच्चे को अगर हम किडनी ट्रांसप्लांट कर दें, सो ही कैन रिज्यूम हिज स्कूलिंग आफ्टर 2 महीने में के बाद। इन द इवनिंग ही कैन प्ले स्पोर्ट्स, इंटरैक्ट विद हिज पीयर्स, अपने दोस्तों के साथ जा सकता है। It is almost a complete rehabilitation, and not only that, growth also picks up. So in all sense, transplantation is a better treatment. It is the only, perhaps, I would not say even suggest dialysis. I would suggest कि straight away इसका transplant हो जाए. So in case a donor is not available or is not viable. So donor, if it is not available, we have now cadaveric transplantation आ गया है, आप इनको cadaveric transplantation के लिए list कर सकते हैं. बट मेनी टाइम्स अगर आप सोचेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, कई बार हम सोचते हैं कि वो चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप अपने रिलेटिव्स में बात करें, और पहले हमारे पास लिमिटेशन थी डोनर्स की कि ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा है, डोनर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, अब वो भी टेक्नोलॉजी आ गई है, एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सो ऑल वी नीड इज अ हेल्दी पर्सन बिटवीन 18 ईयर्स टू 65 to 70 ईयर्स भी चल जाते हैं। ब्लड ग्रुप मिले या ना मिले, नॉट अ प्रॉब्लम, डायबिटिक नहीं होना चाहिए, बट अदर देन दैट it can be done. You have to fulfill the clauses of Human Organ Transplantation Act जो हमारे पार्लियामेंट ने पास किया है, उसके तहत अगर आपको जो भी डोनर मिलता है फर्स्ट डिग्री या सेकेंड डिग्री रिलेटेड, तो ट्रांसप्लांटेशन कैन बी डन। So another person has asked what is the cost of kidney transplantation in total, like approximate cost. Yeah, kidney transplant actually is a very economic, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। आज की डेट में जो हमारे यहाँ का ट्रांसप्लांट पैकेज है 3.5-4 लाख का केवल है। तो उसमें क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं? पैकेज उस दिन शुरू होता है जिस दिन आप एडमिट होते हैं, तो उसमें आपके रूम के चार्जेस इंक्लूडेड हैं, उसमें सर्जरी इंक्लूडेड है, डॉक्टर्स फीस इंक्लूडेड है, इन्वेस्टिगेशंस इंक्लूडेड है, और मेडिसिन भी इंक्लूडेड है। सो केवल 4 लाख का। हाँ, उससे पहले कुछ टेस्ट जरूर होते हैं ट्रांसप्लांट एडमिशन से पहले, दोनों के डोनर के रिसिपिएंट के, वो चीज़ें इसमें इंक्लूडेड नहीं होती, बट 4 लाख कंपेयर्ड, इट्स मच चीपर देन लॉट ऑफ द अदर सर्जरीज, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज। So that is all for today. Anything that you would like to tell our audience? देखिए, हमारे देश में जैसे कि आपने अभी मेरे से पूछा कि डोनर अवेलेबल नहीं है, तो देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ डोनर्स, और डोनर्स हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कहाँ से आते हैं? तो कई बार हमें आता है कि भाई क्या हम विल में लिख सकते हैं कि हम मरने के बाद अपनी किडनी डोनेट करेंगे? नहीं, वी नीड ब्रेन डेड, नॉट हार्ट स्टॉपेज के बाद, किसी की डेथ के बाद हम उसकी किडनीज रिकवर नहीं कर सकते, सिर्फ कॉर्निया से रिकवर कर सकते हैं। तो एक ब्रेन डेड अगर डोनर है तो ऐसे लोगों को किडनी डोनेशन करना चाहिए। ऑल ऑफ अस शुड साइन ऑर्गन डोनेशन कार्ड, सो दैट कि अगर खुदा ना खास्ता कभी हमारी ऐसी स्टेज में हो कि हमारी ब्रेन हैज डाइड बट द हार्ट इज फंक्शनिंग आईसीयू में, तो हम अपने एटलीस्ट ऑर्गन डोनेट कर सकें। इंडिया और ऐसे पेशेंट्स 2-3 सोर्सेज से ज़्यादा आते हैं। एक तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से आते हैं, दूसरा ब्रेन सर्जरीज जो सक्सेसफुल नहीं होती उनसे आते हैं। इंडिया में हाईएस्ट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट रेट है इन दी वर्ल्ड, बट हमारा जो ऑर्गन डोनेशन रेट है इज द लोएस्ट। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि वी शुड स्प्रेड द मैसेज ऑफ ऑर्गन डोनेशन, दैट दिस इज द ओनली वे दैट यू कैन कंटिन्यू टू लिव इवन आफ्टर यू हैव डाइड, by donating your organs and saving about 7 other lives. Thank you. Thank you, sir.